Hello guys, Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to discuss about the surface chemistry, and the important topic which is included in the surface chemistry is about the adsorption and what is its topic, and now we discuss it. So first of all, you will have to know the concept of surface chemistry. That what is surface chemistry? So, surface chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of surface phenomena because it is dealing with the processes which are occurring on the surface. It could be occur on the surface of a solid, it could be occur on the surface of a liquid, it could be occur on the surface of gas. So, whether what is a substance, it is a mixture, it is a solution, it is an emulsion, it is a suspension, whatever it is, but the main theme is that this process is going to be on the surface of anything. So therefore it is called as a surface phenomena. So the absorption process is included and it is considered as the surface phenomena. So now we are going to discuss the detail of this topic, and first of all we are going to discuss its definition, that what it is defined as. So you will define the process of adsorption as that it is the phenomena of attracting as well as retaining of molecules of a substance. Now, the substance could be a solid, could be a liquid, or could be anything, gas, or anything. So, these molecules attract and retain what? Resulting into the higher concentration of molecules on the surface than in the bulk. The bulk mean inside a substance. For example, this substance, so इसके अंदर inside the substance there is a bulk, but it is on the surface, so therefore it is called as a surface phenomena. So we will define the absorption process as that it is a surface phenomena in which there is the attracting and re-attaining of the molecules of a substance which could be a liquid, gas, or solid, and resulting into the higher concentration of your molecules. So in that way you will define your absorption. Then you will discuss the two components of adsorption. What are these components? Now we'll discuss it. First component is adsorbate, then second component is absorbent. There is a difference between them. So absorbate is the molecular surface which accumulates at the surface of absorbent. So in this diagram, focus on this diagram and you will see this substance is called as absorbent, and you will see many molecules of small molecules of absorbate are attached to its surface. It is going to attach on its surface, so therefore it is called as a surface phenomenon. So, in this absorbent, the molecular surface is beginning to accumulate at the surface. This is very important. हमेशा these processes occurring on the surface. So the substance that is attached to the surface of the solid or जो भी substance mean that this is the absorbent small molecules representing they are the sorbate absorbate, so they are attached to the surface of it, so therefore they are called as absorbate. While if we define the absorbent, so it will define as you also have to discuss the examples of absorbate. Some examples of absorbent are dyes, alkaloids, fatty acids. So these are included in the absorbent. But if you discuss the absorbent, actually it is a solid surface at which the absorbate has to absorb. But you have to remember it not always a solid, it could be a liquid. ठीक है, बट गैस नहीं हो सकता है. ठीक है ना, कि गैस अपने ऊपर सॉलिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कैसे रख सकता है. आप खुद इज्यूम करें कि ये एब्जॉर्बेंट अगर गैस हो सकती है, नहीं हो सकती, बट इट कुड बी अ लिक्विड. लेकिन लिक्विड ये है कि जब हमारा एक बीकर में, जैसे फॉर एग्जांपल एक बीकर में आपके पास जो है वो लिक्विड आ जाता है. अब इस लिक्विड के ऊपर आप सॉलिड मॉलिक्यूल्स को ऊपर गैदर करवा सकते हैं. अंडरस्टैंड. सो इसलिए मैंने कहा कि इट कुड बी अ सॉलिड और इट कुड बी अ liquid. So I mention it here, liquid.
सो ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। और इसके बाद आप लोगों ने इसको लिख देना है कि दैट इट हैज़ टू एब्जॉर्ब ऑन इट्स सरफेस। इसकी एग्जांपल्स में आप एलुमिना और चारकोल की एग्जांपल दे देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसकी अपीयरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरह से अपीयर होता है, सो अपीयरेंस में ये स्फेरिकल पैलेट्स की फॉर्म में भी आता है, यानी छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म में आ जाए या रोड्स की फॉर्म में आ जाए, लेकिन इसका साइज हमेशा एब्जॉर्बेंट से ज़्यादा होगा। सेकेंड चीज़ है इसकी, ये पोरस भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये जो एब्जॉर्बेंट बनाया ये पोरस नहीं था। अगर मैं इसका एक पोरस एब्जॉर्बेंट बनाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये पोरस मैं बनाने लगी हूँ एब्जॉर्बेंट आपका, देख रहे हो इसमें पोर्स है, इन पोर्स में कुछ भी आ सकता है, ये तो इसमें ये पोर्स आ जाते हैं, इस ये पोरस आता है। अब ये ना पोर्स की साइज़ पे डिपेंड करता है। अब ना पोर्स मेगा पोर्स भी हो सकते हैं, माइक्रो पोर्स। मेगा पोर्स क्या होगा, जिसमें पोर का साइज़ ज़रा बड़ा होगा, और माइक्रो पोर्स है जिसमें पोर्स बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। सो ये इस एब्जॉर्बेंट का पोरस होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखिए जितना पोरस होगा उतनी आसानी से जो है ना एब्जॉर्बेंट इसके ऊपर आके अटैच हो सकेगा, उतना ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। सो एब्जॉर्बेंट के आपने एग्जांपल्स भी देख ली कि इसमें एलुमिना और चारकोल मेजर हम यही दो जो हैं वो यूज़ करते हैं। और एब्जॉर्बेंट की जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने देख ली कि डाइस और कोलॉइड्स और फैटी एसिड्स, ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब डाइस आप देख रहे हैं ना कि हम कभी कभी जब भी किसी चीज़ को कलर करवाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि उस चीज़ की सरफेस के, फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर को कलर करवाते हैं, उसके ऊपर कोई भी डाई करवाते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है कि उस फर्नीचर का ऑलरेडी एक होता है शेप, और उसके ऊपर कलर की जो लेयर आती है वो उसके ऊपर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है किस्म की, कि मतलब बिल्कुल अटैच हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ना। सो यही प्रोसेस होता है कि एब्जॉर्बेंट उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं, दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपस में अटैच हो जाते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। तो ये बहुत जगह इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो लिखा हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाता है कि ये इमल्शंस बनाने में हेल्पफुल करता है हमें। इसके अलावा हेल्प करता है पेनिट्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, कि हमने अगर किसी भी मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करके जाना है, डिफरेंट चीज़ों के लिए ये हेल्पफुल होता है, तो उसके लिए भी है। सेकंड चीज़ है कि ये आल्सो एडजस्ट करता है डोजेज फॉर्म की। देखिए आपको फार्मेसी में तो ज़्यादा सौ पे आपको डोजेज फॉर्म एडजस्ट करनी होती है पेशेंट की नीड के मुताबिक। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पेशेंट है, अगर वो एक चाइल्ड पेशेंट है तो आपको उसको थोड़ी सी स्मॉल डोजेज फॉर्म देनी होगी। अगर आपका कोई एडल्ट है तो आप उसको मतलब बड़ी डोजेज भी दे सकते हैं। सो पेशेंट की एज, उसकी सब कुछ को देख के, उसकी डिज़ीज़ को मैनेज रख के, उसकी एज को देख के, उसका वेट को देख के हम डोजेज फॉर्म को डिसाइड करते हैं। सो उसको डिसाइड करने के लिए भी हमें हमारा जो ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन को, वो हमें हेल्प करता है कि हम डोजेज फॉर्म को एडजस्ट कर सकें। सेकेंड जो लास्ट थिंग है, ये हेल्प करता है स्टेबल सोल्यूशन बनाने में, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि कुछ हमने जो है फार्मेसी में ख़ास तौर पे जब हम ड्रग्स बनाने की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि वो आपस में हमने उनको बनाना होता है, उनका रॉ मटेरियल आपस में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है ना, वो इनसॉल्युबल होता है। तो अब हम, क्योंकि ड्रग हमने बनानी है, हमने उन दोनों को सॉल्युबल करना है, तो वो सॉल्युबल उन दोनों को आपस में करने के लिए भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि वो चीज़ें जो आपस में सॉल्युबल नहीं हो सकता, जैसे सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई एक इनसॉल्युबल लिक्विड आ गया, सॉलिड आ गया, और वो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन का जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है उसके अंदर। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसे आ जाती है जो उसके अंदर इनसॉल्युबल आती है, लेकिन हम इस प्रोसेस के ज़रिए से उसको सॉल्युबल कर सकते हैं, इस तरह हम एक स्टेबल सॉल्यूशंस बना लेते हैं, जो कि हमारे फार्मेसी में तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो आई होप कि आपको इस पेज में सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Most effective absorbent has a high surface area, means the absorbent which has high surface area, definitely it has high surface area, so it can allow more and more absorbent to absorb on it, and then there is more and more absorption process.
So finely divided solid, which is usually in the form of powder, is very beneficial and can be effective absorbent. So further the examples of absorbents are given here, जैसे silica gel, charcoal, activated carbons could be the example, while the dyes, alkaloids, fatty acids are the example of absorbent. So example of adsorption की दी हुई है, large quantity of gases are taken up by charcoal cooled in liquid air. सो आपने क्या करना है कि बहुत सारी गैसेस हैं, आपने उसको चारकोल के ऊपर, एक्टिवेटेड कार्बन को ही हम चारकोल कहते हैं, उसके ऊपर आपने रख देना है, एब्जॉर्ब करवाना है और फिर आपने उसको कूल कर देना है लिक्विड एयर के अंदर, तो आपका एब्जॉर्प्शन बन गया। सो ये एक एग्जांपल थी इसके लिए। नेक्स्ट में आपने एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखना है, वो था एडजॉर्प्शन, ये है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है? इट इज़ द फिनोमेना एट विच द सब्सटेंस एंटर इनटू अनदर एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक सब्सटेंस था, उसके अंदर एंटर हो गया है। पिछले पेज में मैंने आपको दिखाया था कि वो उसकी सरफेस के ऊपर था सिर्फ। यहाँ पर क्या होगा कि एक सब्सटेंस दूसरे के बिल्कुल अंदर जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब मैंने इसमें डिफरेंस किया हुआ है एड्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। सो एड्जॉर्प्शन आपको पता है सरफेस फेनोमेना है, और ये एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट रिलीज करता है। और इनिशियल जो होता है इसका, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है तो इनिशियल रेट उसका जो है वो लार्ज होता है, काफ़ी जल्दी रिएक्शन हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त ज़्यादा होता है। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है इसकी जो रेट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। जबकि अगर हम एब्जॉर्प्शन की तरफ बात करें तो ये एक बुल्क फेनोमेना है, क्योंकि उसके बुल्क के अंदर एंटर हो गया मॉलिक्यूल। ना ही ये एक्सोथर्मिक है, ना ही ये एंडोथर्मिक है, मतलब ना ही इसमें हीट बाहर निकल रही होती है, ना ही हीट अंदर आ रही होती है। रेट भी इसका यूनिफॉर्म है, यानी ये नहीं है कि इनिशियल रेट ज़्यादा हो, आगे ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ये डायग्राम मैंने बना के इन दोनों को जो है वो समझाया हुआ है। जैसे एड्सॉर्प्शन है ना, तो ये लिक्विड है रेड कलर का, उसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एडजॉर्ब हो गए हैं। जबकि यहाँ अगर हम आए तो ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के बाहर भी मॉलिक्यूल्स हैं। सो इस तरह से एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। नीचे ना एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं एडजॉर्प्शन की। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर्स ऑन द सिलिका जेल, कि सिलिका जेल पे जैसे वाटर के वेपर्स आ जाते हैं, ये दोनों आपस में सोलेबल नहीं है, बट एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से हम इनको आपस में एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। और अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करें तो स्पॉन्ज में वाटर का जाना, आपको पता है स्पॉन्ज जो होता है जिससे हम बर्तन वगैरह जो है वो धोते हैं, तो स्पॉन्ज जो होता है वो अपने अंदर वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, स्पॉन्ज अपने अंदर वाटर को ले लेता है। तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो ये मैंने डेली लाइफ की भी एग्जांपल दे दिया आपको, ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके मुताबिक तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आंसर करें, और क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको उसको ज़रूर आंसर दूँगी। ठीक है, और आई होप कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Now we are going to discuss about the types of adsorption कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसको दो तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। पहले में इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरे में इसकी टाइप्स हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट जो है, एब्जॉर्बेट क्या था, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर थे, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एब्जॉर्बेंट से। जैसे यहाँ देख सकते हो कि ये ऑरेंज कलर में मैंने जो बनाया हुआ है ये एब्जॉर्बेट है, और जो ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो हायर कंसंट्रेशन में, देखें कितने क्लोज हैं आपस में। सो ये एब्जॉर्बेट थे। और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी एब्जॉर्बेट की वो कम होगी एब्जॉर्बेंट से। जैसे यहाँ देख सकते हो ऑरेंज कलर का एब्जॉर्बेंट है, ऊपर एब्जॉर्बेट कितने छोटे छोटे हैं और कितने फासले पे है। सो ये नेगेटिव एब्जॉर्प्शन को शो करता है। अब हम इसकी दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, दैट इज़ फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसको हम दूसरा नाम देते हैं फिजिकोसॉर्प्शन और केमिकोसॉर्प्शन। तो ये दो नाम भी आप इसको रख सकते हैं। अब इनकी सबसे पहले हम डिफाइन देख लेते हैं, ये यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है। फिजिको एब्जॉर्प्शन में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विच एब्जॉर्बेट
एब्जॉर्ब ऑन द एब्जॉर्बेंट बाय द वैन डर वाल फोर्सेस, कि जो आपका एब्जॉर्बेंट ने ऊपर अटैच करना है एब्जॉर्बेट को, वो कि उसके दरमियान में कौन सी फोर्सेस होंगी। मैंने कहा था ना कि कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं दोनों के बीच में। तो अगर उन दोनों के बीच में वाटर वॉल फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम उसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। बट अगर उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं या कोवलेंट फोर्सेस आ रही हैं तो तब हम उन्हें केमिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब इनमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, वो मैं अब आपको बता देती हूँ। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ना, उसके केस में आपके पास मल्टी लेयर्स बनती हैं, कोई एक लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक लेयर होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, जबकि ये हाईली स्पेसिफिक होता है। इसमें वीक फोर्सेस होती हैं, वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, जबकि इसमें हाई स्ट्रॉन्ग कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं ये, और लो हीट, बिल्कुल इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है इनके अंदर, क्योंकि ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। और अगर टेम्परेचर हम इसका ज़्यादा कर देंगे, जिसको लो हीट चाहिए, वो क्या होगा, डी अट्रैक्ट हो जाएगा, उनके अंदर जो अट्रैक्शन थी वो कम हो जाएगी। और अगर हम उसको टेम्परेचर को कम करते हैं तो जाहिर बात है कि उनके दरमियान में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा एक दूसरे के जो है वो चिपक जाएंगे एक दूसरे के ऊपर ना। सो ये इसकी मैंने आपको टाइप्स बता दी हैं। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, कि उसकी नेचर क्या है। और फिर है एब्जॉर्बेट की, एब्जॉर्बेट आप सल्यूट एज अ सल्यूट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको सल्यूट कंसिडर कर लो, आप इसको सॉल्वेंट कंसिडर कर लो। तो जो सल्यूट है ना, उसको सॉल्वेंट के अंदर कम सॉल्युबल होना चाहिए, यानी जितनी सॉल्युबिलिटी कम होगी उतना एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये एब्जॉर्बेंट का, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। टेम्परेचर की ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोपोर्शन है, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कम होता है। और प्रेशर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, सॉलिड में भी हो रही है, लिक्विड में भी हो रही है। सो अगर सॉलिड में किस तरह से होगी, फॉर एग्जांपल आपका सॉलिड का एक बड़ा सारा क्रिस्टल है और वो टूट जाता है, और वो टूट के छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है, तो फिर ये चाहिए सॉलिड का एक छोटा सा पीस आ गया। पहले ये एक बड़ा सारा पीस था, वो टूट के एक छोटा सा पीस बन गया। अब उसके ऊपर क्या हुआ, डिफरेंट जो एब्जॉर्बेट है छोटे छोटे वो आके अटैच हो गए, तो ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया सॉलिड के अंदर। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो है वो फोर्स एक्ट होती है। ठीक है। और फोर्स एक्ट होने की वजह से एब्जॉर्बेंट जो है वो आके इस तरह से, जैसे ये लिक्विड है एक बीकर के अंदर, एक लिक्विड ग्रीन कलर का और उसके ऊपर ऑरेंज कलर के आ गए हैं डिफरेंट एब्जॉर्बेट। सो ये था कि एब्जॉर्प्शन जो है वो सॉलिड के अंदर भी होती जाती है, लिक्विड के अंदर भी हो जाती है, गैसेस के अंदर भी होती है। अब जैसे लिक्विड है ना, इसी के ऊपर गैसेस आ जाती हैं। ये एब्जॉर्बेंट को आप समझ लें, एब्जॉर्बेट को गैसेस है, तो वो भी इस तरह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शो कर सकती है। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट दो एक और टर्म्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ हमने सॉर्प्शन का जो है वो टर्म को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप इसकी डिस्कवरी देख लें। JWMC ब्रेन जो थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था अपटेक ऑफ गैसेस बाय द पोरस सॉलिड। तो मैंने कहा था कि गैसेस भी एब्जॉर्बेट बन सकती हैं और पोरस सॉलिड होना चाहिए, यानी हमारा जो एब्जॉर्बेंट है ना वो पोर्स की फॉर्म में। और मैं पोर्स आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह के पोर्स होंगे। सो ये मैं एब्जॉर्बेंट बना रही हूँ जिसमें क्या है, पोर्स हैं, पोरस एब्जॉर्बेंट हमारे पास ये आ गया, ये मैंने बना लिया। अब इसके ऊपर गैसेस जो है वो आ सकती हैं, ये गैसेस आ गए, कोई भी गैस वट एवर इट इज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंसीडर कर लो ऑक्सीजन आ गई है, हर जगह है ना ऑक्सीजन, तो हर जगह। सो इस तरह से अगर गैस का इंटरेक्शन होता है सॉलिड के साथ तो उस फेनोमेना को हम सॉर्प्शन, यानी उसको हमने एक अलग नाम दे दिया। तो फेनोमेना इन पोरस सॉल्वेंट जो होगा सॉलिड, वो हमारा एब्जॉर्बेंट होगा। ये सॉलिड एब्जॉर्बेंट है, उसके ऊपर जो है वो गैस आ गई है, कोई भी गैस आ जाती है तो हम उसको सॉर्प्शन का प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आती है डेट इज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
सो इट इज़ द रिवर्स बैक ऑफ द रिएक्शन। तो वहाँ क्या हो रहा था एब्जॉर्प्शन में कि एब्जॉर्बेंट आ रहे थे, अटैच हो रहे थे एब्जॉर्बेंट के साथ, और इस तरह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा था। बट डीसॉर्प्शन में अब क्या होगा कि जो एब्जॉर्बेंट के मालिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, वो यहाँ से जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये डीसॉर्प्शन होती है कि डिटैचमेंट हो गई है, वापसी एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट की। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन हो गई है किसकी, एब्जॉर्बेट की और एब्जॉर्बेंट की। सो इट इज़ द डी अटैचमेंट ऑफ एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। सो अब हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम की कर्व्स आ जाती हैं एब्जॉर्प्शन की। हम उन कर्व्स को देखेंगे, जैसे ये कर्व नंबर 1 है, ये कर्व नंबर 2 है, इस तरह 6 पूरी कर्व्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो आइसोथर्म, सबसे पहले आइसोथर्म को आपने समझना है कि ये कर्व है, ये जो आगे हमने जितने भी ये कर्व्स बनाई हैं इन सब को कर्व्स को हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। सो आइसोथर्म ये वो कर्व है जो हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, यानी हमने टेम्परेचर क्या किया हुआ है, एक फिक्स किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 25 टेम्परेचर हमने सेट कर दिया कि इसी टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो इसलिए हम इसको आइसोथर्म कहते हैं। ये जितनी भी आगे कर्व्स मैं आपको बनाऊंगी इनकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन की जो आइसोथर्म है इसको क्लासीफाई किया है हमने 5 टाइप्स में, बट एक 6 टाइप भी है, बट मेजर आपने इन 5 टाइप्स को डिस्कस करना है। तो टाइप नंबर 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ठीक है, सो टाइप 1 आइसोथर्म को अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 जो आइसोथर्म है, इट इज़ अ केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड इट हैज़ माइक्रोपोरस एब्जॉर्बेंट। तो इसमें पोरस इस तरह का एब्जॉर्बेंट होता है। माइक्रोपोरस क्या है कि बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होंगे। यहाँ पर मैंने बड़े बनाए हैं, बट रियल में तो बहुत छोटे होते हैं कि आप ज़्यादा गौर से देख ही नहीं सकते। तो इसलिए तो ये आप इसकी कर्व बनाएंगे। यहाँ पर आपने अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रखना है, यहाँ आप प्रेशर रखोगे। तो कर्व कुछ इस तरह जा रही है। तो यहाँ पर ये जो राइजिंग कर्व है, आप अभी जो इससे बाद वाला है ना उसको आप भूल जाओ, ये वाला जो है इसको आप भूल जाओ। अभी आप यहाँ तक हो कि यहाँ क्यों राइज हुआ, कि ये जो राइज हुआ है ये क्यों राइज हुआ है। सो एक्चुअली यहाँ पर हमने जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ी है। ठीक है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ी है। बट अगर हम इसके आगे जाएं, इस लाइन के आगे जाते हैं, तो बिल्कुल एक कांस्टेंट पैरेलल लेयर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं बट एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ रही है। देखिए मैंने जब फैक्टर्स आपको पढ़ाए थे, मैंने उसमें आपको कहा था कि जैसे प्रेशर बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ज़्यादा होगा, और हुआ भी है, बट एक डेफिनेट लिमिट तक, इस लिमिट तक। उससे आगे क्या हुआ कि वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। अब हायर प्रेशर चाहे हम जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दें, अब कांस्टेंट हो गया एब्जॉर्प्शन। क्यों कांस्टेंट हो गया, देखिए हमारे पास लिमिट फिक्स है, हमारे पास इतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंट नहीं है। और दूसरा हमारे पास माइक्रोपोरस एब्जॉर्बेंट है। अब उसके अंदर जितने पोर्स हैं, फॉर एग्जांपल इस प्रेशर तक वो सारे पोर्स फिल अप हो गए। ठीक है, ये पोर्स थे, मैंने प्रेशर यहाँ तक अप्लाई किया, ये सारे पोर्स फिल अप हो गए, इनके अंदर पूरा भर गया, ये मैंने भर दिया इनको, सारा एब्जॉर्बेंट इसके अंदर आ गया। बाहर भी सारा एब्जॉर्बेंट का वो फैला हुआ है, मतलब फुल पैक हो गया। अब क्या कोई और जगह से आ सकता है एब्जॉर्बेंट उसके ऊपर, नहीं आ सकता। सो सिंपल। सो इसी वजह से हम जितना मर्जी आगे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आपका जो एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो आगे कांस्टेंट रहना है, एक पैरेलल लाइन आ जाएगी। आई होप कैंडल यू हैव गेट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप 2 आइसोथर्म। टाइप 2 हाइड्रोजन एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, और ये नॉन पोरस एब्जॉर्बेंट के ऊपर होती है। आपको याद रखना है कि बाकी जितने भी ये कर्व्स हम पढ़ेंगे ना, ये पोरस जो है वो एब्जॉर्बेंट के ऊपर होंगी। बट सिर्फ टाइप 2 और टाइप 6 ये दोनों नॉन पोरस के ऊपर होंगी, बाकी सारी पोरस के ऊपर होंगी। सो अब इसकी कर्व कुछ इस शेप में आ रही है। ये वाली जो शेप होती है कुछ इस टाइप की, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड शेप। ये सिग्मॉइड एस की तरह है ना, थोड़ा सा एस की शेप में आ जाता है। तो इसी वजह से हम इसको सिग्मॉइड शेप कह रहे हैं। अब इसमें क्या चेंजिंग आ रही, क्यों ये इस तरह की कर्व आई है, लीनियर क्यों नहीं आई। तो ये जो ये वाला कर्व है, ठीक है, मैं आपको अभी आप सिर्फ यहाँ तक देखो, मैंने जब पॉइंटर रखा है इस वाली साइड पे आप लोग देखो, यहाँ पर कर्व कुछ इस तरह जा रही है ऐसे।
और अगर इस पॉइंटर के बाद आप देखते हो तो यहाँ से कर्व कुछ यूं जा रही है। सो दोनों कर्व जो हैं वो थोड़ा एक दो कर्व जो हैं वो शो कर रही हैं। सो ये वाली जो कर्व है ये वाली ये शो कर रही है कि इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर सिर्फ एक मोनो लेयर बनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ, ये एब्जॉर्बेंट की सरफेस है, उसके ऊपर सिर्फ एक लेयर बनी है एब्जॉर्बेंट की, ये एक लेयर मोनो लेयर, ठीक है। बट जैसे ही हम आगे जा रहे हैं इस वाली कर्व के ऊपर तो मल्टी लेयर बन रहा है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो गया। मल्टी लेयर कैसे बनेगा, एक और लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, एक और लेयर आ जाएगी। सो मल्टी लेयर सिस्टम उसकी सरफेस के ऊपर बनती जा रही है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता जा रहा है। सो यही चीज़ है। और यहाँ पर इस पॉइंट तक ग्राफ रुक क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर पी एस आ गया, फुल एक ऐसा प्रेशर आ गया जहाँ पर फुली सेचुरेट हो गया। अब इससे ज़्यादा जो एब्जॉर्बेंट है वो और एब्जॉर्बेट को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकता, तो ये एक लास्ट सेचुरेशन का पॉइंट आ जाता है। ठीक है। सो आई होप कि आपको टाइप 2 आइसोथर्मल समझ आ गई होगी। अब हम टाइप 3 पे चलते हैं। अच्छा, टाइप 3 जो आइसोथर्म है, यहाँ वीक अट्रैक्शन है। जो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा ना एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के अंदर, वो थोड़ा वीक होगा। क्यों वीक होगा, क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, एडहेसिव फोर्सेस कम हो जाएंगी। कोहेसिव फोर्सेस किनके दरमियान होती है, दो ऑपोजिट मालिक्यूल्स के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और मालिक्यूल है, ये बिल्कुल एक ऑपोजिट मालिक्यूल है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, दोनों ऑपोजिट मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान में जो फोर्सेस आती हैं उनको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। बट जो दो सिमिलर और एक जैसे मॉलिक्यूल है, दोनों सिमिलर है, कलर डिफरेंट नहीं है, इनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं उनको हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ टाइप 3 के अंदर क्या हो रहा है कि कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती जा रही है, एडहेसिव फोर्सेस कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से एक वीक अट्रैक्शन बनता है एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के अंदर, और इस वजह से हम इसको वीक कहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रेशर देखें बढ़ा रहे हैं, बट कर्व थोड़ी इरेगुलर आ रही है, फिर एकदम बड़ी, एकदम स्ट्रेट अप हो गई। स्ट्रेट अप क्यों है, क्योंकि मोनो लेयर फॉर्म हुई है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो चुकी है अब एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि हमने प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया यहाँ तक, ये पॉइंटर देखो, यहाँ तक हमें चाहिए था प्रेशर, हमें चाहिए था प्रेशर ताकि वो प्रेशर हम अप्लाई करें और ये जो वीक अट्रैक्शन है इसको स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। बट जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, यहाँ तक हमने बढ़ाया, एकदम राइज अप हुआ, एकदम राइज अप हुआ, क्योंकि जो उसको जितना प्रेशर चाहिए था वो उसे मिल गया है। जैसे उसे वो प्रेशर मिला वो एकदम जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उसने शो की है और वो स्टेबल हो गया है। तो इस तरह की टाइप 3 जो है वो आइसोथर्म हमें ऑब्टेन होती है। टाइप 4 में क्या होता है, ये टाइप 4 की जो है वो कर्व आ जाती है, कुछ इस तरह से होती है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये यूं जा रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला बनाया है ये मुझसे गलती से बन गया था। सो टाइप 4 में आप दोबारा एक पोरस एब्जॉर्बेंट को यूज़ करेंगे, इस तरह के पोर्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइक्रो पोर्स वाला आपने यूज़ करना है। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ बेंजीन को अगर हम करते हैं सिलिका जेल के ऊपर तो ये उसी की एग्जांपल आती है। सो इसमें ये एक लेयर आ जाती है और एक ये वाली लेयर है, आगे तो कांस्टेंट हो रहा है ना, तो एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। तो इस कर्व पे क्या हो रहा है, मोनो लेयर बन रही है, जबकि इस कर्व पे क्या हो रहा है, मल्टी लेयर बन चुकी है। तो इस तरह आपने आइसोथर्म के अंदर बताना है कि कहाँ मोनो लेयर बन गई है, कहाँ मल्टी लेयर बन गई है, और फिर आगे जाके वो कांस्टेंट हो गया क्योंकि सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब हम टाइप 4 भी हम लोगों ने देख लिया, टाइप 5 के ऊपर हम आ जाते हैं। तो टाइप 5 भी बिल्कुल सेम है 3 के साथ। 3 में हमने कहा था क्या थी, वीक अट्रैक्शन थी, यहाँ पर भी वीक अट्रैक्शन होगी और माइक्रोपोरस होगा यूज़। और टाइप 5 और ये टाइप 3 है, ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ की कर्व देखो, यहाँ दो इस तरह की कर्व्स बन रही हैं। तो यहाँ कंडेंसेशन हो रही है, हायर प्रेशर जब होता है तो हाई अब्जॉर्प्शन हो जाती है, एक दूसरे में कंडेंस हो गई हैं दो कर्व्स। पहले वो वीकर अट्रैक्शन थी ना, तो वीकर अट्रैक्शन क्या होता है, कभी वो टूट जाता है, कभी वो वापसी जुड़ जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले जो था वो अब्जॉर्बेंट एक दूसरे से अलग भी हो रहे थे, जुड़ भी रहे थे, बट एकदम जब हम प्रेशर हायर करते गए वो आपस में कंडेंस हो गए। पहले उसका कर्व ये था
उसका कर्व ये था, बट जैसे प्रेशर बढ़ाया वो आपस में मिल गए और एक ही कर्व बना दिया। सो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट जो 6 आइसोटोन है हम उसको डिस्कस करेंगे। ये 6 आइसोटोन कहता है कि इट इज़ होमोजेनियस अपीयरेंस होती है और ये भी पोरस नॉन पोरस के लिए है। मैंने आपको कहा था कि 2 और जो 6 है ये नॉन पोरस के लिए होता है, जबकि बाकी सारे पोरस एब्जॉर्बेंट के लिए होंगे। इसकी कर्व देखो, यूँ जा रही है, फिर यूँ और फिर यूँ, तो ये थोड़ा इरेगुलर बिहेवियर आ जाता है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको ना टाइप 6 को अभी इसका पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं, बट ये इसका पार्ट है सही। क्योंकि ये जो वेयर्ड बिहेवियर आया है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज, इसकी कोई लॉजिक साइंटिस्ट जो है वो ढूंढ नहीं सके हैं। इस वजह से हम इसको नॉर्मली उसकी क्लासिफिकेशन में भी राइट अप नहीं करते हैं, बट ये एक है सही। इसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और जैसे कोई ना कोई रिसर्च करेंगे या कोई ना कोई लॉजिक इसकी उन्हें मिलेगी तो वो ज़रूर जो है वो शेयर करेंगे, बट अभी तक इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए हमें भी नहीं पता कि किस वजह से अपराइज जो है वो हो रहा है। तो आप बस इसको राइट अप कर लेंगे, बट जो मेजर क्लासिफिकेशन होगी वो आप सिर्फ टाइप 5 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। टाइप 6 बस आप बना दीजिएगा, ये ग्राफ लिख लीजिएगा और जो दो बातें मैंने इसकी बताई हैं वो बस आप राइट अप कर देंगे, दैट इज़ एनफ। ओके, सो आई होप कि सारी कर्व्स आपको समझ आ गई होंगी। लास्ट जो इसका एक चीज़ है वो हमने इसकी एप्लीकेशंस को देखना है, उसके बाद हम अपना लेक्चर को एंड कर देंगे। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो है डीकलराइजेशन के मतलब कि ये डीकलराइज कर सकता है। डीकलर का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का कलर था और अब वो उसका कलर ख़त्म हो जाना, तो उसको डीकलराइजेशन कहते हैं। सॉल्यूशंस की डीकलराइजेशन हमने करनी होती है डिफरेंट ड्रग प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग वीक एब्जॉर्बेंट को जो है वो यूज़ करते हैं और हमें डीकलराइजेशन हो जाती है। For decolorization we use activated charcoal, जिसको हम एक्टिवेटेड कार्बन भी कहते हैं, या एनिमल चारकोल जो हम यूज़ करते हैं और हम एक कलरलेस सोल्यूशन जो है वो बना लेते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है, जैसे टैलिक और एक्टिवेटेड चारकोल ये इसलिए यूज़ होता है। ये एज अ डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है। मेजर जो डीकलराइजिंग एजेंट है वो दो हैं, टैलिक और एक्टिवेटेड चारकोल। देन द सेकेंड चीज़ आ जाती है कि ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा है वाटर वेपर्स की। तो वाटर वेपर्स की कैसे करवा रहा है, जैसे एलोवेरा और जो सिलिका जेल है ये पावरफुल डेसिकेटिंग एजेंट्स होते हैं। डेसिकेटिंग एजेंट्स वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं। अब क्या कैसे है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर में सिलिका जेल जो है वो यूज़ होती है एज अ डेसिकेंट इन द फ्रीज़र। जो रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीज़र वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर ये सिलिका जेल होता है और वही जो है वाटर को वहाँ पर के लिए यूज़फुल होता है, ताकि टेम्परेचर जैसे कम होगा वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बर्फ़ जमती है उस फ्रीज़र के अंदर। वो भी इसी वजह से होता है कि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का ही प्रोसेस हो रहा होता है। देखिए कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। इसके अलावा इसकी मेडिसिन यूजेस भी हैं। मेडिसिन में भी जैसे कैनोलिन या एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह है, तो ये गैसेस के साथ साथ डिफरेंट टॉक्सिन या बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे जीआईटी के अंदर उसको भी एब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ बैक्टीरिया अगर हैं कि हम एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं तब भी वो नहीं हो रहे हैं, तो हम एब्जॉर्बेंट की इस प्रोसेस के ज़रिए से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा चारकोल डिक्रीज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आवर बॉडी, की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना हमारी बॉडी के अंदर उसको कम भी करता है। कुछ होती है जो एब्जॉर्प्शन, जैसे हमारी बॉडी की स्किन है वो कुछ अल्ट्रावायलेट रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेती है जो सन से आ रहा होता है। वो एब्जॉर्प्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो उसको भी रोकने के लिए ये चारकोल जो हमारा एक एजेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये पायरोजेंस जो फीवर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और जिसकी वजह से वो हमें फीवर या कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाते हैं एयर पोल्यूशन मास्क। डिफरेंट किस्म के मास्क हम लोग पहनते हैं एयर पोल्यूशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसमें भी सिलिका जेल और एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ किया हुआ होता है। और व्हेन द डस्ट जो स्मोक इससे पास करती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना डस्ट के या स्मोक के अंदर जो हार्मफुल और इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं तो वो उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
सो आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के अंदर इन्हीं मास्क से ही हम प्रोटेक्ट रहे हैं। सो इन्हीं मास्क के अंदर सिलिका जेल और एक्टिवेटेड चारकोल की वजह से हम लोग सेफ रह सके हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो वायरस है उससे खुद को बचाया है। सो आप इसकी इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर की बात करें तो हम लोग एलम स्टोन को ऐड करते हैं वाटर के अंदर ना, इसकी प्योर इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो एलम है वो अब जो होता है ना, ये वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर इस तरह से प्योरीफाई हम कर देते हैं वाटर को। जैसे जैसे हार्ड वाटर होता है तो हम उसको सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। इसके अलावा एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये एक प्रोसेस है पूरा, जिसमें एड्जॉर्प्शन का ही प्रोसेस करके हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज़ होता है? ये फ्लूइड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पर भी काम आ रहा है। इसके अलावा सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए कि किसी चीज़ का सरफेस एरिया कितना है, उसके लिए भी हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस को यूज़ करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, मैं आपको उसको ज़रूर आंसर दूँगी, रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप बेशक सब्सक्राइब ना करें, आप बेशक लाइक ना करें, बट कमेंट में आप कम से कम मुझे करेज कर दिया करें कि आपने अच्छा पढ़ाया है या आपने ये गलती की है, मेरी गलतियाँ भी निकाला करें, ताकि मैं सीखूं और ज़्यादा और आपको भी सिखा सकूं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड also subscribe and like my channel. If you like my videos, also share it with your friends and your relatives. Take care of yourself. Also remember me in your prayers. Allah Hafiz.